Hello class, welcome you again to our YouTube channel. My name is Liaquat Hussain. I am teaching here you the Polity, Constitution, Social Justice, International Relation, Governance, the GS paper 2. This is Kartavya IAS, earlier, and now we have started a kind of initiative named Kartavya Sabka. इसके अंदर हम आपको प्री कोर्सेज ऑफर करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इनिशिएशन किया है, इनिशिएटिव लिया है। इसमें आपको प्री कोर्सेज पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन कॉम्प्रिहेंसिवली जीएस पेपर 2 सारा कुछ कवर किया जाएगा free of cost, and I assure you from my part that the quality of information shall be maintained. You can ask any question on real time basis, or because we go live very often, and when you feel like you have not attended the live session of our classes, then you can ask the question in the comment section. We reach out to you, we read you all the comments very sincerely. तो ऐसा है। अभी हम पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, सिटीजनशिप पढ़ा था, पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, एंड प्रायर टू दैट एक वीडियो सीरीज किया था हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 4, राइट, पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे भी पहले हमने सैलिएंट फीचर्स किया हुआ है। तो ये सारे वीडियोस ऑलरेडी शॉर्ट हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे। आप उनको खुद से एक्सेस कर पाएंगे जब भी आप चाहें तो, और प्लीज़ आप उनको गो थ्रू करिए एक बार, और आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने जा रहा है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन that your experience will be exciting, you will be thrilled after watching our videos, because these videos are information loaded, right? So there will not be any scarcity of information, the facts and figures, each and everything, right? All the nitty gritties of the topic we discuss here. So uh, you can watch our videos. These are the rationality behind watching our videos. Or okay, so let's get started. Our today's point of discussion is going to be fundamental rights. It is very part and parcel of our constitution and political system, or particularly we talk about the polity. ये जो मूल अधिकार हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के अंदर, और जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसमें मूल अधिकारों का एक बहुत बड़ा इमिनेंस है, प्रोमिनेंस है, और आपको जानना ही चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है ये, आपको इसको समझना ही पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट कमीशंस, राइट? So you are bound to, duty bound to learn this topic. All the topics are important, but these fundamental rights has primacy. They are much more important than others topic. So deep understanding of the fundamental rights is very crucial, right? So let's get started and try to understand the fundamental rights. So let's try to understand the concept of rights itself. ये concept of rights जो है, ये अधिकारों का जो मामला है, ये कहाँ से आ गया, क्यों अधिकार चाहिए हमको, या इनकी हिस्ट्री क्या है, कब से अधिकारों का चलन शुरू हुआ। तो ये जो नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट है आप समझने की कोशिश करें। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, we are born a kind of independent person. We are born, and nature has bestowed upon us so many kind of uh, liberties and rights. We are born, so we are not going to die on the choices of anyone. अगर हम पैदा हुए हैं, दिस इज नेचुरल राइट। हम फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, हम कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, दीज आर नेचुरल राइट्स ग्रांटेड बाय द ऑलमाइटी गॉड, राइट? और द नेचर, मदर नेचर हैज given these rights to us. So these rights are very sacrosanct, these rights are very important, right? So this is the concept of natural rights. So since the beginning itself, when our civilization, human civilization started, then there itself the concept of natural rights were there. Yes, it is reality that these rights were breached very often by the certain different communities or the other people, other there was no order in the society, there was no kind of order, law and order in the society, so everything was in chaos. So that is the reality, but the concept of natural rights was
earlier also. So from there we started our journey. Why the concept of rights are important? These are legitimate claims. We can say the rights are basically the legitimate claims. Whatever we claim and those claims are legitimate, those come into the purview of the concept of rights. You see, if we lose our rights, then we lose our our power to initiate something. For example, every individual is creative because mother nature has given the unique kind of qualities amongst our people. They have distributed, the mother nature has given qualities to our people, and those qualities are very strange, very unique. Each and every individual is very unique or very strange, right? Strange in the positive sense, right? So we are equipped with the a lot of creativity and intelligence. What if our creativity is not going to come out, right? There is check imposed by state or any authority for that matter, right? So if our curiosity, our intelligence, our creativity is not going to be exposed, then what? Our initiative shall be dying. हमारे जो नवाचार करने की क्षमता है जो हमारी, वो मर जाएगी. हम इनिशिएशन नहीं कर पाएंगे, हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर क्रिएटिव पीपल. हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ हम क्रिएटिव करते हैं. तो ये राइट्स का इम्पोर्टेंस यहाँ से और भी बढ़ जाता है कि हमारा जो हिडन पोटेंशियल है या जो हमारा पोटेंशियल है, उसको पूरी तरह से रियलाइज कर पाएंगे हम कब? जब हमको राइट्स मिलेंगे, कुछ बेसिक राइट्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे. फॉर एग्जांपल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right equality before law, equal protection of law, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट. तो ये सारे राइट्स वेरी एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है, बिल ऑफ राइट्स से हमने इसको मोटिवेशन डिराइव किया है. और बिल ऑफ राइट्स जो है वो मोटिवेटिंग फोर्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए. बिल ऑफ राइट्स क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स का एक सेट है जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. उन्होंने यूएसए में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स नहीं बल्कि उनका नाम रखा है बिल ऑफ राइट्स. तो ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मोटिवेट होके हमने अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया है, उसका प्रावधान किया हुआ है. ठीक है, तो इतना आपने समझा. आप ये समझ जाइए कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल को या कम्युनिटी के पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर राइट्स नहीं है, मूल अधिकार नहीं है आपके पास, बेसिक राइट्स नहीं है, then all the potential is going to be wasted. Our society in general and the individuals particularly shall never be able to realize their complete potential, right? So that's why liberty, justice, equality and other kind of fundamental rights are very crucial. That's why these rights are relevant and we must be entitled with the rights. Now let's come to the another point I've written here for you. The rights are very important to safeguard people and communities against the tyranny of the government and against the arbitrary laws of the legislature, right? Government can unleash the tyranny on the people and on the communities, on the society, right? And the parliament or the legislature in general can legislate so many draconian laws to impose restrictions on the people, right? So we try to safeguard our people, our communities from the government tyranny or the executive tyranny and arbitrary laws of the legislature in general, like parliament or the state legislature. So that's why these fundamental rights are important. What fundamental rights are doing? They are checking the authority of the government to unleash the tyranny on the people or the communities, and at the same time the fundamental rights are working as a check on the authority or the power of the parliament to make or to legislate arbitrarily, right? So while unleashing the power, the tyrannical power of the executive shall be mindful of the fundamental rights, that okay, fundamental rights are there, they cannot be reckless,
needs to be a kind of rationality behind their initiatives and the actions. So you understand this much. At the same time, we have ensured social and economic justice in our constitution. So these rights जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स में कवर किया है हमने, इसको हमने बताया था पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं. आर्टिकल रेंजेस फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, and this is the directive principles of state policy, right? DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. इनके अंदर हमने क्या किया है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो प्रोविजंस रिगार्डेड हैं, नीडेड है, ठीक है, डिजायर्ड है, उनको हमने इसके अंदर रखा है. आपको पता है जब फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मिला दें तो फिर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर से निकल के आती है. सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट is one aspect, one great aspect of the philosophy of the constitution. So basically we are studying today the philosophy of the constitution, right? So let's move ahead and try to understand the list, the exhaustive list which is given in our constitution itself of the fundamental rights, मूल अधिकार. अच्छा, एक सवाल और है, यहीं पे उसकी चर्चा कर लेते हैं कि why these rights are called the fundamental rights. ये जो अधिकार है इनको मूल अधिकार क्यों कह दिया है, ये मूल अधिकार क्यों है ऐसा, ये समझने की कोशिश करेंगे हम. ठीक है, तो ये मूल अधिकार क्यों है, लेट मी राइट हियर फॉर यू. Why they are called fundamental? These rights, the fundamental rights, FRs are called the fundamental, right? तो ये जो अधिकार है इनको हम सिर्फ राइट्स बोल सकते थे, ठीक है, इनको एक सेट ऑफ राइट्स तो बोलते ही हैं, ऐसा ही है, लेकिन इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा, इसके लिए दो कारण हैं, आप समझने की कोशिश करिए. these rights are very fundamental for the individual and independent and autonomous existence of human being, right? These rights, ये जो अधिकार हैं, ये बहुत मूल हैं किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी या सोसाइटी के इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस के लिए. एक कम्युनिटी है, एक कोई इंडिविजुअल है, सज्जन है, अगर उनका ऑटोनोमस और फ्री और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व आप इंश्योर करना चाहते हैं, तो ये जो अधिकार हैं ये उस बात को करने के लिए बहुत मूल हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल है. फंडामेंटल का मतलब कम से कम ये तो होने ही चाहिए. इफ वन इंडिविजुअल वांट्स टू लिव विथ dignity, right, with freedom, with autonomy, right, then these rights are very basic, very fundamental. That's why यही कारण है कि हमने इन अधिकारों का नाम मूल अधिकार रख दिया या फंडामेंटल राइट्स रख दिया. दूसरा, these rights are incorporated in our constitution. Constitution is the essential or the fundamental part of the law of the land. Law of the land, लॉ ऑफ द लैंड के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये काफी इमिनेंस रखता है या फंडामेंटल ये डॉक्यूमेंट है कानून के लिए, लॉ के लिए, ठीक है. तो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट में हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, और जो लॉ का डॉक्यूमेंट है, हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है, इसी वजह से हमने इसको फंडामेंटल राइट्स कहा है. तो फर्स्ट वाला जो लॉजिक है वो काफी रिलेवेंट है, आप समझने की कोशिश करिए. लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सहास्टिव लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. मूल अधिकार के अंदर जो एक्सहास्टिव लिस्ट है उसकी, जो सारे अधिकार लिखे हुए हैं, उनको समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स सी हियर, पार्ट थर्ड, अभी मैंने बताया पहले भी आपको कि पार्ट तीसरा है जिसके अंदर मूल अधिकारों की चर्चा की गई है. और अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेदों की बात करें, देन अनुच्छेद रेंजेस फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ठीक है. तो हम कुछ सेट्स में, सेक्शंस में डिवाइड करके ये राइट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे संविधान के अंदर 6 सेट ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, जो 6 सेट ऑफ राइट्स हैं वो हैं. और पहले सिंस द ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अंदर 7 सेट ऑफ राइट्स थे, एक एक्स्ट्रा और भी राइट था, ठीक है.
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने एक राइट जो और था राइट टू प्रॉपर्टी उसको खत्म कर दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 1978 के अंदर हमने राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, दैट राइट हैज बिकम अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज ए। ठीक है, तो ऐसा कर दिया। अभी का सिनेरियो जो है आपको समझना है, 6 सेट ऑफ राइट्स हैं, 6 सेट ऑफ राइट्स हैं हमारे पास, और वही राइट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही हमारे संविधान में है। पहले 7 थे जब हमारा संविधान लागू हुआ, एक राइट उसमें से हमने डिलीट कर दिया है, पार्लियामेंट ने कानून बना के उसको खत्म कर दिया है, दैट राइट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। और उस राइट को हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर खत्म कर दिया है। अब वो लीगल राइट बन गया है और वो आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अंदर आता है। ठीक है, ऐसा। तो चलिए अब हम ये 6 सेट ऑफ राइट्स जो हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। This right ranges from article 14 to 18. You see here I have written everything here for your convenience. Second right is right to freedom, आजादी का या स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22। थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या है, आर्टिकल 23 टू 24, दो आर्टिकल्स हैं इसमें। फोर्थ जो हमारा राइट है, सेट ऑफ राइट है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। ये 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम पढ़ते हैं। देन जो फिफ्थ सेट ऑफ राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30, राइट। एंड द लास्ट राइट इज द सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट। दिस राइट इज अंडर आर्टिकल 32। You see here from 29, 30 and then directly we came to 32. We are not discussing about article 31 because article 31 was right to property and I have told you multiple times that this right is no more a fundamental right. That's why ये आर्टिकल 31 हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सास्टिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। एक चीज आप ध्यान रखिए, हमारे संविधान में जो कंसेप्ट है ये फंडामेंटल राइट्स की एक्सास्टिव लिस्ट है। ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स विच आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनके लक्षण क्या हैं, वो किस तरह के मूल अधिकार हैं, उनको हम पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट फीचर, द प्रोमिनेंट फीचर इज that some are exclusive for citizens and others are for all persons, right? तो मूल अधिकार जो है हमारे फ्रॉम आर्टिकल 12 टू पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35, इनमें से कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए हैं एंड अदर राइट्स आर फॉर द सिटीजन्स एंड द अदर पीपल आल्सो. So the first rights are dedicated to the citizens only. One set of rights amongst all the fundamental rights are dedicated for the citizens only, and other rights are for the all persons. You keep this in your mind, all persons, citizen and all person, right? तो हमने फिर कैटेगराइजेशन किया है कि अगर हम ऑल पर्सन्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो उनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. वी कैन कैटेगराइज दिस ऑल पर्सन्स इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली द सिटीजन, the second one is alien, and the last one is legal persons, right? So you see here the citizen, the rights which are available exclusively to the citizens, those rights are article under article 15, 16, 19, 29, 30, etc. Other so many rights are there which are exclusively available for the citizens only. And under the all persons, the aliens are also there. We have discussed when we were discussing the citizenship, then we discussed about the aliens also. Aliens can be categorized into 2 categories, namely the friendly alien and the enemy aliens, right? Let's not repeat this again and again. So other rights are available for the aliens and other rights are available for the legal persons also. Legal persons, the corporations and companies. So this is the thing you try to understand. Under our constitution, particularly amongst the fundamental rights, some fundamental rights are exclusively available for the citizens while others
fundamental rights are available for all persons, citizens, aliens and legal person. Legal person simply means the companies and the corporations, right? तो ये पहला जो फीचर है ये आपने पढ़ लिया है। ये अभी हम दूसरे फीचर की चर्चा करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड फीचर विच इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यू सी हियर, our fundamental rights are not absolute in nature, they are qualified. You simply understand, ये जो हमारे मूल अधिकार हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट ना होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, देयर आर लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि एक कोई मूल अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि मैं, मुझको आज़ादी है, हमारा संविधान आज़ादी देता है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन का मोड हो सकता है कुछ भी, चाहे मैं बोल के बता रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, या लिख के बता रहा हूँ, या इशारे में बता रहा हूँ, कुछ भी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अब बोलने की आज़ादी या एक्सप्रेशन की आज़ादी है मुझको तो मैं कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद हूँ। अगर मैं कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम सेइंग वेदर गुड और बैड, अगर ऐसा होता तो हम कहते कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता है कि मैं कुछ गलत बातें नहीं बोल सकता, मैं किसी को हार्म करने वाली बातें नहीं बोल सकता, मैं अपने देश को खंडित करने के लिए या अपने देश में हमारे हार्मनी एंड ब्रदरहुड खराब हो ऐसी बातें नहीं बोल सकता। तो ये सारी बंदिशें हैं। इसी बात से आप समझ पाएंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, राइट। वो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब उनके ऊपर स्टेट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रोविजन है, ठीक है। तो उनके ऊपर बंदिशें हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अब मैं क्या बातें बोल सकता हूँ? मैं नैतिक बातें बोल सकता हूँ, अनैतिक बातें नहीं बोल सकता। मैं किसी दिन प्रीच करना शुरू कर दूं, रॉबरी इज गुड थिंग, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, रॉबरी इज बैड थिंग, इट इज अनएथिकल टू से दिस रॉबरी इज गुड थिंग। तो ऐसी बातें करना, अनैतिक बातें, ऐसी बातें करना जिससे इंडिया के यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा हो, सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली बातें या डेरोगेटरी बातें, महिलाओं के खिलाफ अभद्र बातें, ये बातें हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा फ्रीडम का अधिकार नहीं है। यही बात है जहां से आप समझ पाएंगे कि हमारे मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। ये कुछ शर्तों पर लागू होते हैं, राइट। कुछ शर्तें हैं उसके अंदर ही ये काम करते हैं। these rights are not absolute, right? So the in the constitution itself, under the fundamental rights itself, there are reasonable restrictions. Let me write here, reasonable restrictions. So restrictions are being imposed or has been imposed on our fundamental rights, but those restrictions needs to be, reasonable. Very important, very important, try to understand. फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब स्टेट बोल दे कि ठीक है, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ, यस, प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, ओके। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, ये जो आप एक्सप्रेशन करते हैं इसके अंदर आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, ऐसा सरकार ने बैन कर दिया। तो भाई ये जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया ये रीजनेबल है क्या? आपको प्राइमा फेसाई लग सकता है कि ये रीजनेबल नहीं है, सरकार की आलोचना होनी चाहिए अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो क्रिटिसिज्म पे ही काम करती है, वो चलती है, ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म रुक गई देन डेमोक्रेसी विल बी अंडर डेंजर, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ऐसा है। आप समझेंगे, कभी हम डेमोक्रेसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी रीजनेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा?
then Supreme Court or the judiciary in general is vested with the authority to ensure the reasonability of the restrictions which are being imposed on the फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ऐसा। आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रीजनेबिलिटी शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, पर्टिकुलरली द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, राइट। तो ये लोग रीजनेबिलिटी डिसाइड करेंगे। टाइम टू टाइम हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की कोशिश करती है कि इनके फंडामेंटल राइट्स को कुछ कम कर दिया जाए, कर्टेल कर दिया जाए। क्योंकि अगर हमारे राइट्स कम होते हैं देन गवर्नमेंट बिकम्स कंपैरेटिवली मोर पावरफुल, तो वो ज्यादा पावर होल्ड करने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं। बट टाइम टू टाइम आवर सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग इट्स पावर टू जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट्स ये इंटरप्रिटेशन करके उसकी रीजनेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं मूल अधिकारों पे, ये अल्टीमेटली इंश्योर करते हैं वेदर दोज रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर बीइंग इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स आर रीजनेबल और नॉट, राइट। ओके, सो और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई लोग बड़े दुखी हो जाएंगे कि क्रिटिक्स आल्सो क्रिटिसाइज इन दिस वे कि ये मूल अधिकारों को एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। जब आपने अधिकार दिया और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया, आपने बोला कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, तो फिर क्या फायदा, अधिकार देते ही ना आप। ठीक है, ऐसी क्रिटिसिज्म करते हैं कुछ लोग। तो उनको समझाने के लिए आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाए हैं वो एक बैलेंस बनाने के लिए हमने लगा रखे हैं, टू इंश्योर टू काइंड ऑफ अचीव अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड राइट्स ऑफ द कम्युनिटीज एज अ होल। ठीक है, जो हमारा पर्सनल राइट है, इंडिविजुअल राइट्स है, और कम्युनिटी का जो एक राइट है, कम्युनिटी एज अ होल, उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, राइट। कोई आगे ना निकल जाए, कोई पीछे ना निकल जाए, दोनों में एक तारतम्य बना रहे, बैलेंस बना रहे। ऐसा करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू फ्री मूवमेंट। अब मुझको कहीं भी जाने का, आने का अधिकार है, ठीक है, मुझको मूवमेंट करने का अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंदर ही ये अधिकार है, ठीक है। और तो ऐसी फ्रेजाइल कम्युनिटीज हैं जिनकी कल्चर उनकी बहुत डेलिकेट है। अब वहां पे आप मूवमेंट का अधिकार मांग लीजिए, तो और विदाउट परमिट, और आप बोलिए कि सारे दुनिया में, सारे देश के अंदर मुझको ट्रेवल करने का अधिकार है, तो उनके भी तो राइट्स हैं, कम्युनिटीज के भी तो राइट्स हैं। ठीक है, तो उनके राइट्स को भी तवज्जो दी जानी चाहिए, इसीलिए आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के। ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ मूवमेंट करेंगे, ऑलमोस्ट आप सारी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कम्युनिटीज का इंटरेस्ट अगर स्टेक पे होगा तो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इन द सेम वे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू आर स्पीकिंग समथिंग, यू आर राइटिंग समथिंग, but as long as you are not hurting any other individual or any other community, then you are free to express your opinion, no issue in that, right, within the purview of the democratic ethos. You can express your values, your opinion, your ideas. But as soon as you start hurting other communities through your expressions, और other individual through your expressions, तो आप गलत कर रहे हैं। फिर हमको तो दोनों लोगों का, दोनों कम्युनिटीज का, और कम्युनिटी और इंडिविजुअल का, सबके अधिकारों का, मूल अधिकारों की रक्षा करनी है। तो उनके बीच में बैलेंस बना रहे, कोई अपने अधिकार एक्सरसाइज करते समय दूसरे के अधिकारों को क्षति ना पहुंचा दे, ऐसा इंश्योर करने के लिए ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, इंडिविजुअल लिबर्टीज को भी हमने तवज्जो दिया है एंड उसके ऊपर सोशल कंट्रोल लगाया हुआ है। तो चलिए तीसरा हम ये फीचर पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट विथ फ्यू एक्सेप्शंस which are available against the individual also. ये जो मूल अधिकार हैं, the fundamental rights which are there in our constitution, majority of the fundamental rights are available against the state action or the state, and with exceptions several others are available against the state as well as the individual also. ठीक है, ये अधिकारों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर ये जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण नहीं होगा आपके साथ में, किसी भी आधार पे, जेंडर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ऐसा। तो ये अधिकार जो है वो इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे अधिकार हैं कुछ। एक अधिकार है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14,
राइट, अंडर राइट टू इक्वालिटी, तो वो जो अधिकार है वो किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ है। तो इस तरह से हम राइट्स के अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कुछ अधिकार या मेजॉरिटी ऑफ द अधिकार स्टेट के खिलाफ है, और कुछ ढेर सारे अधिकार ऐसे भी हैं जो हमको इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी मिलते हैं। ठीक है, एक बात इसमें क्रक्स है, ये अब आप समझने की कोशिश करिए। दोज राइट्स विच आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, सोलली अगेंस्ट द स्टेट, दोज राइट्स which are available against the state only, if they are violated by the individuals, then their enforcement cannot be ensured through constitutional remedy, right? Only legal remedies shall be available for to ensure their enforcement. तो अगर ऐसे अधिकार जो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हैं, अगर वो अधिकार इंडिविजुअल्स के द्वारा वायलेट किए जाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार नहीं है आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, आपको ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी अवेलेबल है, आप नॉर्मली कोर्ट्स में जाके आप उसका रिड्रेसल ढूंढ सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। ओनली लीगल रेमेडी इज अवेलेबल। लेट्स मूव अहेड और हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। The fourth feature of our of our fundamental right is, so many fundamental rights are negative in nature while others are positive in nature. So many fundamental rights are there which imposes a kind of restriction on the authority of the government, while other fundamental rights are there which enable citizen or communities to do good things, to do advancement in their in their career, in their life, और टू लीड अ गुड लाइफ, राइट। तो इस आधार पे कुछ मूल अधिकार हैं जो स्टेट की अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और कुछ अधिकार हैं जो स्टेट को मना नहीं करते हैं, बल्कि इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज को प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये करने के लिए आजाद हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं। इसी आधार पे हमने फंडामेंटल राइट्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स एंड पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर निगेटिव एंड पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो जो हमारा आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, ये स्टेट के ऊपर एक कंट्रोल लगाने का काम करता है, स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनीवन while enforcing the laws on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, etc. और इसी का एक एस्पेक्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो पॉजिटिव कनोटेशन है, वो पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं कि स्टेट इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, राइट, लाइक अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, राइट, ऐसा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट है। Now the fifth feature is justiciable in nature. See, justiciability, again, it is great feature of our fundamental right. You try to understand, our fundamental rights are justiciable in nature. It simply means that if and when they are violated, either by state or by individual or whatever, their enforcement can be ensured directly through the Supreme Courts and High Courts. Supreme Courts, right to constitutional remedy is there by virtue of Article 32, and High Court you can go by virtue of Article 226, and you seek the a writ jurisdiction is there, you can seek the enforcement of the fundamental right. So these rights are justiciable in nature, simply means if and when they are violated, the Supreme Court and High Courts can ensure directly. Particularly if we talk about the Supreme Court is vested with the authority to ensure the enforcement of the fundamental rights. That's why these rights are justiciable. इन राइट्स का लागू होना सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी किया है, यही बात है जस्टिसिएबिलिटी। तो जस्टिसिएबिलिटी हमने पढ़ लिया, राइट। द नेक्स्ट फीचर इज डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। दीज राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, अभी अभी बात किया हमने, ठीक है। क्योंकि ये राइट्स जस्टिसिएबल हैं, इसीलिए इन राइट्स को गारंटी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये राइट किसके द्वारा रक्षा की जाती है इन अधिकारों की? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 इज देयर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को डिफेंड करती है, इनकी सुरक्षा करती है,
और इनकी गारंटी करती है, हमको गारंटी है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होने पाएगा। जैसे होता है, इफ एंड व्हेन दीज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32 and we seek redressal, we seek enforcement of those fundamental rights. And honestly speaking, our Supreme Court is very proactive in ensuring or enforcing the fundamental rights. They are very proactive, right? And they are doing great service, to our nation. Let's move ahead and try to do the seventh feature which is there in our fundamental rights. They are not sacrosanct or permanent. Let's try to understand the sanctity of our fundamental rights. कई लोग ऐसा कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल हैं, बहुत ही अच्छे खूबसूरत राइट्स हैं, यू सी, आज़ादी का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म मानने का, उसको प्रोपगेट करने का अधिकार, इतने अच्छे अच्छे राइट्स हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये राइट तो न्याय स्थापित करने वाले अधिकार हैं, आज़ादी देने वाले अधिकार हैं, समानता लाने वाले अधिकार हैं। फिर इन अधिकारों को सैक्रोसैंक्ट होना चाहिए था, दे वर सपोज टू बी सैक्रोसैंक्ट, और उनका परमानेंट एक्सिस्टेंस इंश्योर किया जाना चाहिए था संविधान के द्वारा। बट ऐसा होना चाहिए था, इट्स रियलिटी, इवन आई थिंक लाइक दैट ओनली, बट मिसफॉर्चुनेटली दीज राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, दीज आर नॉट परमानेंट। हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों की लिस्ट है ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, मतलब इनकी परमानेंसी, इनका कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस संविधान के द्वारा गारंटी नहीं किया गया है। इनको हम हटा सकते हैं टाइम टू टाइम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके इनके अंदर हम चेंजेस पैदा कर सकते हैं और इनको रिपील भी किया जा सकता है। अभी शुरू में ही हमने डिस्कशन किया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था अंडर आर्टिकल 31, उसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाके राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि कहाँ सैंक्टिटी है, कहाँ सैक्रोसैंक्ट है हमारे मूल अधिकार, बिल्कुल हरगिज भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा आप इससे एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स, राइट। इसमें कोई बहुत वैसी बात नहीं है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एटलीस्ट अभी जो अधिकार हैं वो बहुत ही सैक्रोसैंक्ट नेचर के हैं, मतलब उनकी परमानेंसी होनी ही चाहिए, अब उनमें कमी या कमजोरी नहीं लाई जानी चाहिए, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है, इनको खत्म किया जा सकता है। आप राइट टू प्रॉपर्टी को आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा। Now the eighth feature is like can be suspended during emergency. ये जो हमारे मूल अधिकार हैं ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं, इनको, इनका ऑपरेशन या इनका एग्जीक्यूशन सस्पेंड किया जा सकता है। आप देखिए कैसे, इमरजेंसी इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, उस कंडीशन में हमारे मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन दो अधिकार ऐसे हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी कंटिन्यू करते हैं, वो एक्सिस्टेंस में रहते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये अधिकार हमारे रहते हैं। और एक अधिकार और सस्पेंड होता है जब एक पर्टिकुलर टाइप की इमरजेंसी इंपोज होती है, दैट इमरजेंसी इज द नेशनल इमरजेंसी अगर इंपोज होती है, एंड द ग्राउंड फॉर द इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर किसी दूसरे देश से हमारे देश का युद्ध हो रहा है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हमारा एक मूल अधिकार है जो बहुत प्यारा है, आर्टिकल 19, वो भी सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, आर्टिकल 19, ठीक है। तो ऐसा हमने पढ़ा कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, और ये सिनेरियो है, ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन टू सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो सर्टेन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एंड ऑलमोस्ट जो बॉडीज हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स पे, ऐसे फोर्सेस के ऊपर उनका अधिकार, उनका ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के। क्यों ऐसा किया? अच्छा, इमरजेंसी के टाइम पे मूल अधिकारों को सस्पेंड क्यों किया? दैट इज द टाइम ऑफ इमरजेंसी, सो तो अगर हमारे लोग मूल अधिकारों को एंजॉय करेंगे, वैसे भी हम लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उनको दिया हुआ है, उस टाइम पे भी दोज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, बट अदर राइट्स को हम कंप्रोमाइज करते हैं और इमरजेंसी के नाम पे उसको जस्टिफाई भी करते हैं। और अगर हम ये जो आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं,
इनके और जो दूसरी एजेंसीज हैं इनके अधिकार भी पार्लियामेंट कानून बना के एब्रोगेट कर सकती है और करती है। our armed forces people are very crucial. The people who are working in the intelligence agencies, they are very important people, and if they will enjoy opportunity to do free expression, right, then they can speak the strategic things in the public. वो बहुत महत्वपूर्ण विषय पब्लिक में उठा सकते हैं जो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के विषय हैं, और उनसे हमारे देश को नुकसान हो सकता है। हमारा जो दुश्मन देश है उनके स्पीचेस का या उनकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। यही कारण है, ये रैशनैलिटी है कि हमने जो अपने हमारी आर्म फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, अदर एजेंसीज हैं जो क्रूशियल हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 33 इस बात का प्रोविजन करता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू टेक अवे देयर फंडामेंटल राइट्स। the 10th feature is suspension during martial law. Martial law, military rule। ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या तो काफी एक्सटेंसिव एरिया में मिलिट्री रूल लगा दिया गया है, मार्शल लॉ लगा दिया गया है। व्हेन सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल देन मार्शल लॉ समटाइम्स इज इम्पोज्ड। तो अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे एरियाज में भी हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 इस बात की बात करता है। द नेक्स्ट फीचर इज 11th। यू सी मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एक्सिक्यूटरी and others are enforced by the law of the parliament. Try to understand, ये जो हमारे मूल अधिकार हैं इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एक्सिक्यूटरी इन नेचर। ढेर सारे अधिकार हैं जो खुद से अपने आप से लागू हो जाते हैं, while others are नॉट सेल्फ एक्सिक्यूटरी। पार्लियामेंट को कानून बना के उनका इन्फोर्समेंट इंश्योर करना पड़ता है। लेकिन ये पार्लियामेंट मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेकिन इन मुद्दों पे मूल अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं बना सकते हैं उस पे कानून। क्यों? टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री, राइट। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और कोई पीनल प्रोविजन किया कि आपने अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो ये पीनल प्रोविजन है, तो वो थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर्स को हमने बाहर रखा है। स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट मेक लॉज to ensure the enforcement of the fundamental rights. Only parliament is entitled to make laws to ensure the enforcement of the fundamental rights, right? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी या जो एक्सप्लॉइटेशन के जो खिलाफ राइट है, ठीक है। अनटचेबिलिटी तो एक अपराध है, तो अनटचेबिलिटी का जो ये सेल्फ एक्सिक्यूटरी नहीं है, आप समझिए। अनटचेबिलिटी तो अगर होती है तो वो क्राइम है, और उसको पिनल प्रोविजन बनाने के लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, और उस कानून के अंदर अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो पिनल प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो ऐसा, तो कुछ सेल्फ एक्सिक्यूटरी हैं और कुछ सेल्फ एक्सिक्यूटरी नहीं है, तो पार्लियामेंट कानून बना के उनको उनका एग्जीक्यूशन इंश्योर करेगी। 12th feature is their operation can be limited by article 31A, 31B, 31C and 9th schedule. Yes, this is a categorization where if something is written in this section, what I have written here, article 31A, 31B, 31C and and 9th schedule, तो 9th schedule में कोई चीज लिखी हुई है that does not that shall not be regarded as the violative of the fundamental rights. This is altogether a different category हमने बना दिया है, और fundamental rights के उसकी वजह से जो नलिफिकेशन होता है कानूनों का, उससे एग्जिम्पशन के लिए हमने एक ऑल टुगेदर न्यू कैटेगरी बना दिया, 9th शेड्यूल। और इसके अंदर हम कोई चीज लिख देते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का ब्लेम नहीं लगता है। आर्टिकल 31C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए जो मेजर्स लेती है सरकार, तो उस तरह के भी हम कानून बनाते हैं और इस कैटेगराइजेशन में उसको कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं फंडामेंटल राइट्स के। अब हम तो अब हमारा वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, तो अभी इतना आपने हैप्पीली समझा है, आप फिर से इसको देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाइए आप। बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। और कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, आर्टिकल वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यू नो
वो जो राष्ट्र है उसकी परिभाषा, राष्ट्र के अंदर क्या आता है, क्या है राष्ट्र, बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 के अंदर पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ, लॉ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली विल बी डीलिंग विद राइट टू इक्वालिटी, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो ये सारा डिस्कशन हम कल करेंगे। उसके बाद एक दूसरा राइट हम पकड़ के उसकी पढ़ाई करेंगे। और इस तरह से 3-4 क्लासेस में हम सारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप फोकस्ड रहिए और विथ कंसंट्रेशन, विथ कंसिस्टेंसी यू ट्राई टू लर्न ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अब कल के वीडियो के लिए आप वेट करिए। हम कल आर्टिकल वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे द फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो आर्टिकल्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, ये कंटिन्यूअस स्टडी करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।